Hello, good afternoon, everyone. This is Get Fit, Set Fit coming back for you people. And today we will be discussing from English subject, and the name of the topic is question tag. Question tag. Question tag basically एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डिस्कस करना होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसके साथ आप कुछ छोटे से दो शब्द ऐड ऑन कर देते हो और उससे वो क्या बन जाता है क्वेश्चन, जिससे आप दूसरे से किसी से कंफर्मेशन मांगते हो. यू आर आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन, क्या ये चीज सही है? तुमने आज खाना खाया? नहीं. क्या तुम आज मार्केट गए? नहीं. तुमने आज खाना खाया है? नहीं. ये जो ऐसे हमारे सेंटेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग. ऐसे ही इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we have some rules, total 6 rules we are having in this question tag. Rule number one says, जिसमें कि आपको बेसिक, वेरी बेसिक, आपको एक सेंटेंस दिया होगा. ठीक है, एक सेंटेंस दिया होगा आपको और उसके साथ कॉमा, आफ्टर कॉमा यू विल बी हैविंग वन क्वेश्चन टैग. ठीक है, 2 words, maximum 2 or 3 words will be there. Then rule number 2, सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा, in whichever tense sentence will be, you have to make sure that जो question tag होगा that will also be in the same tense. For example, अगर tense past में है, sentence का जो tense है वो past है, तो आपका question tag का भी past में ही आएगा. अगर ये future है तो question tag will be also in future tense. Right? Now, rule number three says that sentence अगर, if the sentence is positive, affirmative को हम बोलते हैं positive. ठीक है, if the sentence is positive then the question tag will be negative, vice versa. Okay, it will be vice versa. अगर आपको sentence positive दिया है यानी कि affirmative दिया है, then your question tag will be negative. और एक और कंडीशन है इसमें, अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया है, इफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म, then your question tag will be in affirmative, that is positive form. I hope this much is clear to you all. Let's move forward. Now let's move to rule number 4. Rule number 4 says, if in the question tag you have to use not, because हमने यहाँ पे बात की थी ना, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे. तो ऐसे ही अगर आपको सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग आ रहा है उसमें आपको नॉट यूज करना है, सो वी हैव टू यूज इट लाइक दिस in a short form. We will be using not in a short form. So this is correct and this is wrong. We will not use not like not. We will use it like n apostrophe t. Okay, like this. In a short form we will be using it. Then rule number 5 says, whichever helping verb you are using or modals you are using, whichever helping verb or modal is there in the sentence, the same will be there in the question tag. ठीक है, अगर सेंटेंस में is है तो क्वेश्चन टैग में is होगा, सेंटेंस में has है तो क्वेश्चन टैग में भी has होगा. Clear? Yes. Now one exception we are having. See, exception is something that we have to follow. So we have one exception over here, and exception says अगर am है, for example, I am a singer. I am आ रहा है ना सेंटेंस में, then you will use are. You will not use am, you will use are. Okay, aren't I, like this you will be using. With the examples I will tell you, very easy, question tag is very easy. Then let's move a little bit more forward. The last rule is pronouns will be used in the question tag. अगर आपके सेंटेंस में आपको किसी का नेम दिया हुआ है, राम दिया हुआ है, तो he will be used in the question tag. If a girl's name is there, then you will use she. If a thing is there, then you will use it. I की जगह I होगा, us की जगह we होगा, you की जगह you will be there, okay, and they की जगह they will be there. Okay, yeah, so it is very easy. Now let's move ahead. Let's have some practice questions that will really help you out. ये जो अभी हमने 6 रूल्स पढ़े हैं बहुत इजी हैं, वन बाय वन हम सभी के एग्जांपल्स करेंगे.
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, प्रैक्टिस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी स्टेटमेंट है, यू आर रेडी टू गो। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम रूल्स को इसमें अप्लाई करेंगे और जैसे जैसे रूल्स अप्लाई होते जाएंगे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सबसे पहली बात, यू आर रेडी टू गो, ये कौन से टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही रहने देंगे। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब आर, है ना, एज इट इज आर इधर आ जाएगा आर, ठीक है, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकेंड रूल क्या पढ़ा था, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो उसको हम नेगेटिव बना देंगे। तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, एन अपोस्ट्रोफी टी लगा के। हमने ये पढ़ा था कि हम कंप्लीट नॉट वर्ड नहीं लिखते हैं, वो हमारा नेक्स्ट रूल था, तो हमने उसको भी अप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है, आरंट। और जिसके बारे में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यू, तो यू एज इट इज आता है। तो ये हमारा इसका आंसर बन गया, ये हमारी स्टेटमेंट थी, ये हमारा बन गया क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो यू आर रेडी टू गो, आरंट यू, so this is the correct answer. Next question, he is 20 years old, he is 20 years old, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है, is आ रहा है यहाँ पे, तो हमने as it is हमने यहाँ पे लगा दिया is। अगेन ये पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमें इसको नेगेटिव बनाना होगा। तो हमने इसको यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल हमने लगा दिया एन अपोस्ट्रोफी टी। उसके बाद किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में, तो एज यूजुअल हम एज इट इज ही लगा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बना, ही इज 20 years old, isn't he? Next question, question number 3, Ravi has been demanding lot of money. This is the statement, आपको स्टेटमेंट दे रखी है प्रेजेंट टेंस में, तो आपको इसको प्रेजेंट टेंस ही रहने देना है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैज, तो हम हैज एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसको नेगेटिव बना देंगे। एंड देन सी, अब यहाँ पे हमें रवि दिया हुआ है, हमने क्या बोला था, अगर सब्जेक्ट में नेम है तो हम उसको कन्वर्ट करके प्रोनाउन बनाएंगे, तो रवि का हो जाएगा ही। अगर किसी गर्ल का नेम होता तो वो हो जाता शी। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज Ravi has been demanding lot of money, hasn't he? ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। She is the wisest fool. She is the wisest fool. तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है is, तो हमने is लगा दिया as it is, ठीक है। देन पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद she एज इट इज सब्जेक्ट शी, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर बना शी इज द वाइजेस्ट फूल, इजंट शी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े से और एग्जाम्पल्स करेंगे, थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमें और चीजें क्लियर हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ सिंगर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ सिंगर। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है एम, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, बट जब हमने रूल्स पढ़े तो उसमें क्या था, कहीं भी इफ यू आर हैविंग एम देन यू हैव टू राइट इट एज आर, है ना, ये एक्सेप्शनल था, एक मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव का विल बिकम नेगेटिव ओवर हियर, बस सिंपल है। उसके बाद आई के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट इज आई, तो सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, आरंट आई। सो द करेक्ट आंसर इसका बनेगा I am a singer, aren't I? Okay, let's move to the next question. I am your best friend. I am your best friend. इसमें फिर से I और am आ रहा है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज am is the exceptional case, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे are। उसके बाद ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, और I है तो एज इट इज सब्जेक्ट आ जाएगा इधर, तो इसका आंसर बना आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आरंट आई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेट्स गो टू द मार्केट। अब इसमें देखिए, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है, ये रहा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस गो टू द मार्केट, है ना। हम चाहे तो इसको हम लेट अस गो टू द मार्केट लिख सकते हैं, राइट। सो जो ये अस है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए ये कौन से टेंस में है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये कौन से टेंस में, आप इसमें टेंस देखो, लेट अस गो टू द मार्केट, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट में आ जाता है डू और डस, है ना, डू और डस। अस में बहुत सारे हैं, अस मीन्स प्लूरल, है ना। प्लूरल में आता है डू और सिंगुलर में आता है डज। अगर ही शी इट होता तो डज आता, प्लूरल है तो आएगा डू। तो इसका करेक्ट आंसर विल बिकम, इफ आई टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट विल गो लाइक डोंट, क्योंकि पॉजिटिव में है तो डू एंड एन एपोस्ट्रोफी टी, डोंट। अस का बन जाएगा वी, so इसका करेक्ट आंसर विल बिकम डोंट वी, लेट अस गो टू द मार्केट, डोंट वी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, सब्जेक्ट क्या है, ही। बट इस क्वेश्चन में आपको नॉट वर्ड दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज नेगेटिव। अब हमें इसको अफर्मेटिव बनाना होगा। हाउ वी विल मेक इट, हम इज को एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। इज विल बी लाइक सेम इज एज इट इज, राइट। उसके बाद नॉट को हम पॉजिटिव में कर देंगे तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, and he will become like this, he. So the answer for this question will be like, he is not working properly, is he? Okay, so this is question tag for you people. I hope you people enjoyed it, and अब आपको समझ आ गया है question tag कैसे करना है, how you have to attempt the questions, how you will be going up positive to negative, negative to positive, I वाला exception case you have to remember, you have to see the tense. So I hope you people liked it. If you liked it, please like our video, subscribe our channel, that is Get Fit Set Fit, and share if possible for you people, you can share it as well. Thank you so much for the day. Bye everyone, take care, be safe, be at home, and next time we will be coming up with new more topics of English subject, as we have started with the English. So good luck, bye, take care.